નમસ્કાર મિત્રો, હું છું ડીવી મહેતા, ચેરમેન જીનિયસ ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન. જીનિયસ સંવાદ ના આજના 14મા એપિસોડમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. જીનિયસ કનેક્ટ અને જીનિયસ અને જે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના ફેસબુક લાઈવ પર આજનો આપણો વિષય ટીન ટોક લાઈફ સ્કિલ્સ ફોર ટીનેજર્સ આજનો વિષય છે. એમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. આપણી સાથે સૌરભ નેગી, સુપ્રીતિ નેગી અને ડોક્ટર પ્રતીક્ષા ધોળકિયા એ ત્રણેય આજના આપણા એક્સપર્ટ છે. એ ત્રણેયનું સ્વાગત કરીએ છીએ. એના વિશે આપને માર્ગદર્શિત કરશે સૌરભ નેગી કે જે બેસિકલી ઇઝ ફ્રોમ સુરત. એ જબરજસ્ત ટ્રેનર છે મિત્રો, જબરજસ્ત. ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત ના કન્સોર્ટિયમ, નોલેજ કન્સોર્ટિયમ ગુજરાત, એમાં ઇમ્પેનલ સાથે એમનું પોતાનું MBA એમને માર્કેટિંગ ઇન્દોરની યુનિવર્સિટી, દેવી અહલ્યા યુનિવર્સિટીમાંથી કરેલું છે. છેલ્લા 20 વર્ષથી આ જુદા જુદા અનેક પ્રકારના ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ કરે છે. અને ખાસ કરી અને એમનું સ્પેશિયલાઇઝેશન પેરેન્ટિંગ, બાળકોનું કાઉન્સેલિંગ, કોઈ પણ કંપની, કોર્પોરેટ, એમના કર્મચારીઓને ટ્રેનિંગ, આમ 360 ડિગ્રી ટ્રેનિંગ એ સૌરભ નેગી એમનું કૌશલ્ય છે, એમની સ્પેશિયાલિટી છે. એમાં જ આપણી સાથે મિસિસ નેગી, સુપ્રીતિ નેગી, શી ઇઝ ઓલ્સો અવેલેબલ વિથ અસ. બેવ પેરેલલ ચાલે છે. They both are like aligning like two wheels of a chariot and balancing their lives and others' life very effectively and amicably. એમનો પણ 20 વર્ષથી અનુભવ છે આ જ ફિલ્ડમાં. નોલેજ કન્સોર્ટિયમ અને ખાસ કરીને ફિનિશિંગ સ્કૂલ એમાં ઇમ્પેનલ્ડ છે. એમને પોતાએ ફિનિશિંગ સ્કૂલ ટ્રેનર્સની એક બુક એને પણ એઝ એ કો-ઓથર શી હેઝ વર્ક. આ ઉપરાંત એમનું MBA એ ફિનાન્સમાંથી છે. ખાસ કરીને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ મુંબઈ એમાં પણ એમને આસિસ્ટન્ટ મેનેજરશિપ કરેલી છે. આ ઉપરાંત બાર્કલેઝ સાથે પણ કામ કરેલું છે. મોર્ગન સ્ટેનલી એની જોડે પણ એમને કામ કરેલું છે. એટલે મેં જેમ વાત કરી કે 360 ડિગ્રી ટ્રેનિંગ, it's not only corporate, it's not only in education, it's not only for an individual, but for everybody. They are born trainers, both of them. We welcome both of you. આજનો જે વિષય છે આ વિષય એના વિષયની પ્રસ્તાવના એ સુપ્રીતિ નેગી. She is an excellent speaker, excellent trainer. I will request Supriti Negi to guide this audience that what will be the fundamentals, what will be the objectives of today's this live session, Teen Talk, life skill for teenager. Over to Supriti Negi. Okay. Thank you so much, Mehta sir, for such a wonderful introduction for us, all of us here. And I must appreciate कि आप ये जो webinars कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली आज का जो वेबिनार है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अभी जो बजट आया था, यूनियन बजट, निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रेजेंट किया था, उसमें उन्होंने खास ये बात कही थी कि हमारे जो यूथ हैं उनको जॉब स्किल्स की तो जरूरत है ही है, उसके साथ साथ लाइफ स्किल्स का भी उतना ही उन्होंने महत्व बताया. तो बहुत अच्छा है, एकदम ऐप्ट समय है और लॉकडाउन का समय है, तो स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा है क्योंकि बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत कुछ वो सीख पाएंगे. तो अब यहाँ पे आई विल स्टार्ट द प्रोग्राम नाउ विद द स्टूडेंट्स. सो आई वेलकम एवरीवन टू दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच दैट आप अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं. सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स को
हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपना, और उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। ऑलराइट, तो लाइफ स्किल्स फॉर टीनेजर्स। तो अब सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि लाइफ स्किल्स क्या है। तो थोड़ा सा उसके बारे में पहले जानते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एक फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा। क्या हम जानते हैं ये कौन सा जानवर है? कैमलियन, यस, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गिरगिट और गुजराती में कहते हैं काठिंडो, राइट। अब इसकी क्या विशेषता है? ज्यादातर लोग ऐसा कहते हैं, उनका मानना है कि इसकी विशेषता ये है कि ये रंग बदल सकता है। तो क्या ये इसकी विशेषता है, या ये जानना जरूरी है कि ये रंग क्यों बदलता है? तो अब ये जानना जरूरी है कि ये रंग क्यों बदलता है। तो रंग क्यों बदलता है? ताकि सिचुएशन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से वो अपने आप को ढाल सके। तो ये है उसकी विशेषता कि रंग बदलना क्यों है, ताकि वो अपने आप को बचा सके आसपास के जो जानवर हैं उनसे, ताकि वो उससे हमला ना करें। तो वो जिस भी चीज पे रहता है जंगल में, वो उसका रंग धारण कर लेता है। तो लाइफ स्किल्स भी वही चीज है बेसिकली। लाइफ स्किल्स क्या चीजें हैं? ये वो सब चीजें हैं जो आपको जीवन में हेल्प करते हैं एडेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि आप कैसे अपने आसपास के वातावरण में बेहतर तरीके से ढल सकते हैं। तो ये वो सारी स्किल्स हैं जिनके होने की वजह से आपको लाइफ में इजी होगा अडेप्ट करना किसी भी सिचुएशन में। जैसे हम अभी अडेप्ट कर रहे हैं कि पहले हम क्लासरूम में बैठते थे, वहां पे हमारी पढ़ाई होती थी। अब हम वर्चुअल मीडियम के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि हम सबके लिए थोड़ा अजीब है, क्योंकि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते ओपनली जैसे पहले कर सकते थे। तो अब लाइफ स्किल्स का मतलब हमें अगर समझ में आ गया है, तो हम ये देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लाइफ को आराम से अच्छे तरीके से जीने में मदद करती हैं। तो वो क्या क्या स्किल्स हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है जो आपने लास्ट वीक कंप्लीट किया था एक वेबिनार में। तो उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, घर कैसे मैनेज करना है ये भी एक अच्छा लाइफ स्किल है जो आपके पेरेंट्स को आता है बेहतर तरीके से। ड्राइविंग एक ऐसा स्किल है जो हमें आना चाहिए। अगर हमें कॉलेज जाना है, कल हमारी जॉब लगेगी, तो हम घर से कैसे जाएंगे अपने ऑफिस तक, तो ड्राइविंग हमें आनी चाहिए। खाना बनाना आना चाहिए, कुकिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। बॉडी लैंग्वेज एक स्किल होनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें कि हम पॉजिटिव लगें। तो ऐसे बहुत सारे और भी स्किल्स हैं। प्रेजेंटेशन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक ऐसा स्किल है जो लाइफ स्किल्स का पार्ट बनता है। अब हम इन सब में से जितने मैंने टॉपिक्स बोले, उसमें से कुछ चुनिंदा टॉपिक्स के ऊपर आज चर्चा करेंगे, सभी टॉपिक्स के ऊपर नहीं करेंगे। तो उसमें से कम्युनिकेशन स्किल्स का जो टॉपिक होगा वो सौरभ सर लेंगे, बट थोड़ा सा और इसके बारे में हम बात करते हैं बिफोर आई हैंड इट ओवर टू सौरभ नेगी सर। अब कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो हमें बाय डिफॉल्ट, व्हेन वी वर बॉर्न विद दिस स्किल। तो आपको लगेगा ये कैसे, बोल तो हम सकते नहीं हैं और मैम कह रही हैं कि वी आर बॉर्न विद दिस स्किल। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? हमारा दूसरे को अपनी बात पहुंचाने का जरिया, माध्यम कोई भी हो सकता है। तो अब क्या होता था कि हमें जब भूख लगती थी, जब हम बहुत छोटे थे, हम बोल नहीं सकते थे, तो हम कैसे बताते थे हमें भूख लगी है? जोर से, रो के। तो जब हम रोते थे तो वो हमारा एक कम्युनिकेशन था अपने मम्मी को बताने का कि हमें भूख लगी है, हमें दूध चाहिए। और वही चीज एक मदर के लिए, एक माँ के लिए एक इंडिकेशन है कि बच्चा रो रहा है तो उसे भूख लगी होगी। तो हमने कम्युनिकेट किया। अब ये नेचुरल है, हम सब में ये स्किल है बाय बर्थ। अब कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से धारण किए हैं या उनसे हमने लिए हैं। और क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने माता पिता को उस योगदान के लिए जो उन्होंने हमारे जीवन में किया, अब तक हमें परवरिश देने का, तालीम देने का और इतना गाइड किया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। तो अब ये वो स्किल्स हैं जो पेरेंट्स ने आपको बचपन से, उनको देख देख के आपने सीखे और कुछ आपके पास पहले से थे। तो अब कम्युनिकेशन स्किल पे हम वापस आते हैं। तो मैंने आपसे कहा ये हमारे बारे में नेचुरल, हमारे अंदर ऑलरेडी ये स्किल है। तो अब सक्सेसफुल होने के लिए क्या इतना बहुत है? क्या आज की डेट में आपको भूख लगे
तो आप रोएंगे अपने पेरेंट्स को बताने के लिए? नहीं। अव्वल तो ये कि आप खुद जाएंगे किचन में और अपने लिए खाना बनाएंगे, क्योंकि कुकिंग इज अ लाइफ स्किल, राइट? बट नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सक्सेस। तो जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए, बट वो इफेक्टिव कैसे होगी उसके ऊपर आज हम ध्यान देंगे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में शौरभ सर आपसे बात करेंगे, उसके अंदर वो लिसनिंग के बारे में बात करेंगे और वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको अडेप्ट करना और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने में आपको मदद करे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा रहेगा आज का लाइफ स्किल्स का, उसमें मैं आपके साथ बॉडी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन के ऊपर बात करूंगी। तो ये सेशन में हम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों के ही नजरिए से कुछ बातें आपसे करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो ये सेशन होगा, मेरा खत्म होने के बाद प्रतीक्षा मैम लेंगी और उनका सेशन खत्म होने के बाद आपके जो सवाल जवाब होंगे, आपको ये रियलाइज होगा कि आपके लिए ये सेशन फलदायक रहा। So now over to Neji sir. I will stop sharing my screen now. I will hand it over to him from here. नमस्कार। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एक गुरु का रोल प्ले करते हैं या करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट दिन है और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा सुप्रीति मैम ने बताया, लाइफ स्किल्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये एक समुद्र, अथाह समुद्र जैसा है। इसमें जितना सीखना चाहें आजीवन आप लोग सीख सकते हैं। हम लोग जो 20 साल 30 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम आज भी लर्निंग प्रोसेस में ही हैं। हमें आज भी सीखना पड़ रहा है, हम आज भी कोई नया स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज के टॉपिक में मैं जिन टॉपिक्स विषयों के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करूंगा वो ये है कि हम इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कम्युनिकेशन कैसे करें। क्योंकि नॉर्मल जब सिचुएशन थी तो कम्युनिकेशन करना बहुत इजी था। क्या करना था? घर से तैयार होकर निकल गए, कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए, जॉब में चले गए, सब्जी लेने चले गए, मार्केट चले गए, वॉक के लिए चले गए, जिम चले गए। और इन सारी प्रक्रियाओं में हमसे रास्ते में कोई टकरा गया, हमने किसी से लिफ्ट मांगी, हमने टिकट खरीदा, हमने सब्जी वाले से भाव पूछा, तो हमारा कम्युनिकेशन कांस्टेंट था। अब आ गया कोरोना और उसने बोला नहीं भाई नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब घर में बैठो। और अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो जो जीवन हम दिन के 24 घंटे में से 4-5 घंटा बोलते थे दूसरों से, अब उस पे लग गया फुल स्टॉप। और आपको फोर्सफुली बोला जा रहा है कि अब अपने घर की 4 दीवारी में बैठे रहिए और घर के अंदर जो 4-5 लोग हैं जिनसे हमारी रिलेशनशिप्स अब वैसी नहीं रही जैसी बचपन में थी, उनके साथ आपको 4 महीना एक घर के अंदर गुजारना है। वहां एक माँ है जिसको आपकी हेल्थ की चिंता है। अब वो कम्युनिकेट क्या कर रही है? बेटा खाओ, बेटा नहाओ, बेटा पढ़ो, मोबाइल पे कम बैठो। और आपको लग रहा है यार ये क्या वन वे कम्युनिकेशन चला रहा है, वो ही घिसा पिटा रिकॉर्ड सुबह से चालू हो जाता है, मुझे मम्मी से बात नहीं करनी। पापा हैं, अच्छा था, पहले मेरे उठने से पहले ऑफिस चले जाते थे, बातचीत वैसे ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो तो चाइल्डहुड से चला आ रहा है पापा के साथ। वो बच्चा जब पापा ऑफिस से आते थे और आप 2-3 साल के थे और आप दौड़ के उनकी गोद में चढ़ जाते थे, वो तो पुराने जमाने की बातें हो गई। वो किया तो अरसे हो गए। अब तो पापा के साथ टच भी खत्म हो गया है। अब हम पापा को टच करना भूल गए हैं। हम लोग बहुत सारे बच्चों के साथ काम करते हैं। कई बारी हम उनसे ऐसा बोलते हैं कि बच्चे बोलते हैं सर आप थियरी बहुत पढ़ाएंगे क्या? हमने बोला नहीं, हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। हम ऐसी चीज पढ़ाएंगे जो बिल्कुल बेसिक होगी। ना इसमें पेन चाहिए, ना पेंसिल चाहिए, ना पेपर चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप चाहिए। क्या आप वो सब करोगे जो हम बोलेंगे? हाँ हाँ सर ऐसा होगा तो हम करेंगे। बड़े खुश हो जाते हैं। तो पहले दिन का प्रोग्राम खत्म होकर दूसरे दिन हम उनको बोलते हैं बेटा आज एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है? घर जाना और वो पिता
जिसने आपको 14 साल, 15 साल, 20 साल से जो हर महीना अपने जीवन का ऑफिस में गुजार रहा है, हर महीने कितने घंटे, किसके लिए? अपने लिए। अपने लिए उसको कितना चाहिए? 10,000 रुपया हो जाएगा। पर उसको 1 लाख रुपया कमाना पड़ा है, क्योंकि बीबी को भी संभालना है, बच्चों को संभालना है। किस बच्चे को संभालना है? जो अब उससे बात नहीं करता है। वो किससे बात करता है? कॉलेज के दोस्तों से, स्कूल के फ्रेंड्स हैं। वर्चुअल रियलिटी में फेसबुक पे 5,000 दोस्त हैं, पर पापा से थैंक यू पापा, आई लव यू पापा, पापा को गले मिलना, धन्यवाद देना, वो सब तो रह गया, वो पता नहीं कहां चला गया। तो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सीखना है तो पहले मूल रिलेशनशिप्स को ठीक करिए। घर के सदस्यों से तो बात करना सीखिए दोबारा, जिनसे आज आप बात करना भूल गए। तो घर जाओ और पापा आएंगे, उनका वेट करना, जब वो आए उनको पानी देना, और फिर बिना कुछ कहे उनको बोलना पापा 1 मिनट खड़े होइए, मुझे आपको गले मिलना है। उनको गले लगाइए और सिर्फ इतना बोलिए, थैंक यू पापा, बहुत दिन से इच्छा थी आपका धन्यवाद देने की, आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, आई लव यू पापा। कर पाओगे? जब इतना बैकग्राउंड सुन लेते हैं, बोलते सर थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैंने बोला बेटा हमारा रिकॉर्ड ऐसा बोलता है कि 50 की क्लास में से अगर 2 भी करके आए तो हमारा सेशन सक्सेसफुल है। और यही होता है। ये जो टीनेज है, इसमें बच्चे हमसे थोड़े अलग हो गए। अब कोरोना आया, अब वही बच्चा जो हमसे थोड़ा दूर हो गया है, अब वो हमें रोज झेल रहा है घर में, और हम भी उससे चिढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल रहा है कि अरे ये बाहर जाता था, दोस्तों के साथ ये करता था, मेरे साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर रहा है। सो नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड लर्निंग टू रिकम्युनिकेट विद ईच अदर, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत हो गई है। तो हम थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन, तो जैसे सर ने एक दोहा बोला तो मैं भी बोलता हूं। तो लोग बोलते हैं, उन्होंने बोला पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, है ना। कितने भी लिटरेट आदमी हो, जब तक नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे, जो सीखा उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक उस नॉलेज का कोई यूज नहीं। देयर इज नो यूटिलाइजेशन। जैसे सर ने अभी एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया जो एजुकेटर्स के साथ अभी है, कि हम शिक्षक कितनी मेहनत कर रहे हैं। हमें क्लासरूम्स में खड़े होकर बच्चों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी गई। मैंने बीएड किया, एमएड किया, मेरे को गोल्ड मेडल मिला, पर आज कोविड की वजह से मुझे 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद मेरा स्टूडेंट, मेरे स्कूल के पेरेंट्स, मेरे कुलीग्स, मेरे प्रिंसिपल चाहते हैं कि अब मैं टेक्नोलॉजी भी सीखूं, क्योंकि पढ़ाने का तरीका बदल गया है। मेरी कोई गलती नहीं है और मैं सीख रहा हूं। मैं क्लासरूम्स को अपने घरों के अंदर ले आया हूं। मैं आपसे अपनी निजी जीवन शेयर कर रहा हूं, बैकग्राउंड कैसा है, घर में आवाज नहीं हो, मैं अपने घर के बच्चों को चुप करा रहा हूं ताकि आपके बच्चे सीख सकें। और हमारा इतना दायित्व ये है कि हम रेगुलरली फी पे करें। उसमें अगर हमें 1% भी आनाकानी हम करते हैं तो वो शायद हम अपना दायित्व अच्छा प्ले नहीं कर रहे। तो ये भी कम्युनिकेशन का पार्ट है कि क्या हम वो सब कर पा रहे हैं जो नेसेसरी है। अगर टीचर्स कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा, ये भी कम्युनिकेशन। दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत सारी चीजें हैं, पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? लिसनिंग, सुनने की क्षमता। क्या हम अच्छा सुनते हैं? क्योंकि 50% कम्युनिकेशन तो लिसनिंग से रिलेटेड है। तो सुनने में और समझने में अंतर है, हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग क्या है कि मैं यहां पे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरे जोक पे हंस रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, बट क्या आप उसको समझ के इस सब को घर में अप्लाई कर पाएंगे, जीवन में अप्लाई कर पाएंगे? एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कोर इशू। सो हम थोड़ा लिसनिंग के ऊपर बात करेंगे। और लास्ट में, आज के जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हम बोलते हैं एम्पैथी, एक दूसरे के प्रति अभाव, हम, है ना, कि हम क्या एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे के स्ट्रेस को, एक दूसरे के चिड़चिड़ेपन को समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे।
सो इसके साथ मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं VUCA, वुका। वुका क्या है? वुका करंट सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए एक एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है। तो लेट अस सी और उसमें से सीखते हैं। Is my screen visible now? हो रहा है। Hello. Supriti, is my screen visible? Yes, sir. Hello. Yes. Okay, Yes, sir. sir. तो yes, sir. तो आज का टॉपिक लाइफ स्किल्स इन द करंट एनवायरनमेंट है ना। तो जैसे आप ये देखते हैं कि पेड़ है, ये लाइफ स्किल का पेड़ है, और इसमें पीछे आप देख रहे हैं कि ये पेड़ में अभी पीछे कोरोना का वायरस ने इसको घेर लिया है। बट लाइफ स्किल, जैसा मैम ने पहले ही बताया, दिनचर्या में हमें अपने डेली लाइफ को कैसे मैनेज करना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी का एनवायरनमेंट है, ये कब तक रहेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, खराब होगा, इंप्रूव होगा, कितने लंबे समय तक चलेगा, इसको अभी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है जब तक कि इसका कोई वैक्सीन नहीं डेवलप हो। इसलिए हमें अभी जो भी सीखना है वो इस बैकग्राउंड के साथ सीखना है कि शायद हमें थोड़ा और दिनों में इसको स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। तो हमारे जो कम्युनिकेशन के स्किल्स या लिसनिंग के स्किल या एम्पैथी है, उसको हम कैसे ऑल्टरनेटिवली वर्क कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, ये जो करंट एनवायरनमेंट है इसमें वोलेटिलिटी है, वॉलेटाइल है। जैसे शेयर मार्केट, एक दिन कम दूसरे दिन ज्यादा, एक दिन कम दूसरे दिन ज्यादा, जो आजकल हो रहा है ना। कोई भी स्थिरता नहीं है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, रोज कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे अगर आप कंपेयर करें तो चाइना से ये चालू हुआ, यूरोप के देशों में गया, वहां बढ़ा, इंडिया में नहीं बढ़ा। अब यूरोप के देशों में बढ़ बढ़ के धीरे होने लगा है, अब इंडिया में ग्रोथ आ रही है, ब्राजील में ग्रोथ आ रही है, पर अनसर्टनिटी है क्योंकि दवा नहीं है। सो करंट सिचुएशन क्या है? वॉलेटाइल है, अनसर्टनिटी है, लेस क्लैरिटी। क्या होगा? बच्चों के एग्जाम्स, सो टीनेजर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं, या तो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 12th 10th के एग्जाम देने वाले थे, जिनके आधे एग्जाम हुए, आधे नहीं हुए, सीबीएसई ने कुछ एग्जाम्स बंद कर दिए। वो लोग जो अब कौन से कोर्सेज में जाएंगे ग्रेजुएशन के लिए, वो अनसर्टन है। इंजीनियरिंग के एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कब होंगे, किस फॉर्मेट में होंगे, वो अनसर्टन है। सो वॉलेटाइल है सिचुएशन और अनसर्टन भी है। सिचुएशन कॉम्प्लेक्स भी है। क्यों? क्योंकि डिसीजन कैसे लें। बच्चे को हमने सोचा था बॉम्बे के कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजेंगे, पर बॉम्बे भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अच्छे कॉलेजेस बड़ी सिटी में है, तो मैं क्या करूं? अभी बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख के डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और एम्बिग्विटी भी है, VUCA। एम्बिग्विटी किस चीज की है? कि किसी के पास भी सर्टेन और करेक्ट आंसर्स नहीं, राइट आंसर्स नहीं है। सबके पास किसी ना किसी इफ एंड बट के साथ आंसर्स है। सो अभी की सिचुएशन क्या है? वुका है, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस। ये जो शब्द हैं, ये वुका का शब्द 1987 में इसको इन्वेंट किया गया था। और अमेरिका की जो मिलिट्री है उसमें इसका यूटिलाइजेशन होता है कि जब लड़ाई के समय बहुत अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, तो वो लोग वुका को बोलते हैं कि वुका है, सिचुएशन इज वुका। अब हमारी सिचुएशन भी वुका है, पर हम क्या कर सकते हैं? सो कम्युनिकेशन इन द वुका वर्ल्ड, आज वुका है, अनसर्टेनिटी, वल्नरेबिलिटी सब है, पर हम अपने कम्युनिकेशन में क्या बदलाव लाएं, कैसे उसको हैंडल करें ताकि हम इस स्थिति में भी कुछ पॉजिटिव निकाल सकें। सो वी नीड टू लुक एट द पॉजिटिव साइड। तो हमें क्या करना है, जो पेरेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, सबको। सो वॉलेटिलिटी है, घरों में भी वॉलेटाइल है सिचुएशन, सबके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। पापा घर से काम कर रहे हैं, उनको ऑफिस का कुछ टेंशन होता है, फिर वो हमें घर में डांटते हैं, तो हमारे घर में भी कुछ किटर पिटर चल रही है। उसको अवॉइड किया जा सकता है, हाँ, पर वो कैसे होगा? सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आउटकम।
हमें किस चीज के ऊपर वर्क करना है, हमें विजन के ऊपर, वॉलेटिलिटी को ले जाके विजन में कन्वर्ट करना है। विजन से क्या होगा, विजन किसके लिए है, ये टीनेजर्स के लिए है। जैसे मेहता सर ने बोला, अभी सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों को हो रहा है, वो टीनेजर्स है ना, क्योंकि उनकी लाइफ में आज जो प्रॉब्लम्स है जो उनकी वजह से नहीं है, उसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट हो सकता है। पढ़ाई से रिलेटेड, अर्निंग कैपेसिटी से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड। बच्चे 2-2, 3-3 महीने से स्कूल ही नहीं गए। बहुत सारे बच्चे तो भूल गए कि क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सेम चीज ग्रेजुएशन के बच्चों की है। जिनके कोर्सेज चल रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर जिनके स्कूल्स में ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है उन बच्चों का क्या हो रहा है। जिनके वहां ऑनलाइन फैसिलिटी है उनको अप्लाई करना। स्कूल में तो हमारे को केमिस्ट्री में कोई चीज समझाई जाती थी, लैब में ले जाके उसका हम एक्सपेरिमेंट करते थे, हमारे को असाइनमेंट्स दिए जाते थे, हम प्रेजेंटेशंस करते थे, हम अपने प्रोजेक्ट सबमिट करते थे। अभी वो सब नहीं हो रहा है। सो एज अ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम्युनिकेशन को कैसे यूज करें। कम्युनिकेशन को यूज करें बच्चों को थोड़ा सा धीरज देने में, उनको ये समझाने में कि बेटा ये अस्थिरता है पर ये चली जाएगी, नथिंग इज परमानेंट। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, लोगों को लगा था विश्व खत्म हो जाएगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा, क्या हुआ, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जापान आज के दिन में वर्ल्ड की बेस्ट इकोनॉमी बन गया। सो यू हैव टू हैव अ विजन। और हमें उतने बड़े पर्दे पे नहीं, पर एक छोटे पर्दे पे बच्चों के लिए क्लैरिटी जनरेट करनी पड़ेगी, विजन जनरेट करनी ही पड़ेगी। उनको एक मार्गदर्शन देना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, अभी एक्स नहीं हो रहा तो वाई करो बेटा, वाई नहीं कर सकते तो जेड करो, जेड नहीं कर सकते तो ए करो। गिव देम सम डायरेक्शन। एज अ पेरेंट ये हमारी जिम्मेवारी है, उससे उनका जो एंजाइटी है वो थोड़ा कम होगा। दूसरा है अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी को अंडरस्टैंडिंग में जनरेट करिए। अनसर्टन क्या है, फ्यूचर अनसर्टन है। अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है, एक अंडरस्टैंडिंग से करनी है। सो पेरेंट्स के तौर पे हमको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, बच्चे इरिटेटेड हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी लाइफ देखिए, बच्चे कहां से सीखते हैं, बच्चे जब ग्रो करते हैं। सो एक बच्चा जब बॉर्न होता है उसके बॉडी में एक अडल्ट से ज्यादा हड्डियां होती हैं। विद एज, डेक्सटेरिटी, एप्लीकेशन, रनिंग, प्ले, वो हड्डियां क्लब होके अडल्ट बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड देन वी स्टार्ट ग्रोइंग। अभी जो बच्चे हैं इनके अंदर कईयों में डेवलपमेंट ज्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हुई होगी। कई लोगों की अंडरस्टैंडिंग स्कूल्स में ही होती थी, क्यों, क्योंकि वो लोग ग्रुप्स में सीखने की उनकी हैबिट है, वो दूसरों को देख के सीखते हैं, जो अब बिल्कुल बंद हो गई है। तो एज अ पेरेंट, एज अडल्ट्स, हमारे को ये समझना पड़ेगा कि बच्चे क्यों इरिटेट हो रहे हैं, बच्चों में गुस्सा क्यों है, बच्चे क्यों इतना सारा सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, क्यों वो टेलीविजन के आगे बैठे हैं, क्योंकि उनको आदत है टचिंग की, उनको आदत है ग्रुप्स की, बैठने की, बात करने की, बाहर जाने की, जो अब नहीं हो रहा है। सो बच्चा इरिटेटेड है, उस इरिटेशन को अगर पेरेंट्स भी इरिटेशन में कन्वर्ट कर दें, उनसे लाउड टोन्स में बात करें, उनको अब्यूज करें, उनको हर चीज के लिए टोकें, तो उस एंजाइटी के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे साथ आज राजानी मैडम है, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पर हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उनमें भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि बेटा कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जा पा रहे हो तो जो स्कूल का करिकुलम है वो तो आपके पास है, टीचर्स लेक्चर ले रहे हैं उसको अटेंड करो, थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग करो, ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करो जो शायद लास्ट ईयर आपने पढ़े थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, उनको अब अच्छे से डेवलप कर लो। तो अंडरस्टैंड करिए, उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। बेटा अपनी हॉबीज को डेवलप करो, चलो साथ में कोई हॉबी डेवलप करते हैं, उनको कुकिंग में इन्वॉल्व करिए, उनके साथ कोई गेम खेलिए, उनसे हेल्प मांगिए कि बेटा मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, मुझे कुछ बताओ। फिर आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं, एक दिशा नहीं है, तो उनको थोड़ा क्लैरिटी दीजिए कि आप अभी भी इस चेंज्ड एनवायरनमेंट में बेटा क्या क्या कर सकते हो, ये करो। क्या कर सकते हो से ज्यादा ये है कि बैठिए, गोल सेटिंग करिए, क्लियर कि बेटा चलो इतने दिन में आपको ये सीखना है। जैसे मैं हूं,
मैं फरवरी मार्च तक रेगुलरली ट्रैवल कर रहा था ट्रेनिंग के लिए, पर जब से लॉकडाउन है हम घर में रहे, तो हमने क्या किया, हमने इसको चेंज करके क्लैरिटी ये लेके आए कि ठीक है ये ही है, अभी नहीं जा सकते बाहर, तो हम क्या करें, हम अपने स्किल्स को अपग्रेड करें। तो मैं 2 ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे वाइफ भी कर रहे हैं 2 कोर्सेज। तो हम अपनी क्लैरिटी डेवलप कर रहे हैं किसमें, ऐसे टॉपिक्स पे जिनमें हमारी उतनी ग्रिप नहीं हो शायद, तो हम उनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और एम्बिग्विटी को एजिलिटी में कन्वर्ट करिए। एम्बिग्विटी मतलब मल्टीपल नो डेफिनेट आंसर्स विद द पीपल, किसी के पास करेक्ट आंसर नहीं है तो उसको एजिलिटी बनाइए कि बेटा कोई बात नहीं, देखो अभी क्लैरिटी नहीं है ना, तो तुम ये ट्राई करो, तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है ये करो, इसमें तुम्हें इंटरेस्ट है तुम ये करो, पर कब तक करोगे, इसको अप्लाई करो, कोई बात नहीं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप फेल हो जाओगे, फेलियर से लर्न करेंगे और लर्न करके फिर से पढ़ेंगे। अब डिजिटल मीडिया का एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बच्चे जो चाहें वो कर सकते हैं, इसमें उनको कोई करेक्शन नहीं है क्योंकि सामने वाला डायरेक्टली फीडबैक तो दे नहीं रहा है। सो लेट देम ट्राई, गिव देम दैट अपॉर्चुनिटी कि आप ट्राई करो, नया सीखो, ट्राई करो, फेल हो गया कोई बात नहीं, इट इज ओके टू फेल, लर्न फ्रॉम फेलियर एंड मूव अहेड। सो वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्विटी को विजन, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और एजिलिटी में कन्वर्ट करना है। अब जब आप ये कन्वर्ट करेंगे तो विजन से क्या होगा, एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, लिसनिंग इंप्रूव करिए, बच्चे क्या सुन रहे हैं और आप उनको क्या चाहते हैं वो क्या सुने, है ना। सो जैसे इसका उदाहरण, सो लिसनिंग क्या है कि बच्चे आजकल बहुत, बच्चे अडल्ट एवरीवन, हम लोग बहुत सारा सोशल मीडिया पे बैठते हैं, हमने देखा कि सरकार ने, पुलिस ने, कई बार ज्यादतियां हुई हैं लोगों के ऊपर, बट वो तो 132 करोड़ के नेशन में अगर 1%, 2% पॉपुलेशन के साथ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, पर अगर फिर भी गलती से हुआ है तो वो चीज परमानेंट नहीं है, वो तो वन ऑफ द थिंग है। तो बच्चे जो देख रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन लिसनिंग के थ्रू आपको कराना है कि कोई बात नहीं बेटा, कमियां होती हैं, उदाहरण दीजिए, आपके जीवन में कभी डिफिकल्ट पॉइंट आया था, आज नहीं रहा, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, हमारे पास कुछ नहीं था, आज हम चाइना, अमेरिका, इनके ऐसी कंट्रीज के साथ कंपीट करते हैं। जापान का एग्जांपल लीजिए, वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम्स गिरे, इतना नुकसान हुआ, पर उसमें से उन्होंने क्या सीखा, उन्होंने उसमें से ग्रो करना सीखा। सो हम बच्चे क्या देख रहे हैं और उसके लिए हमें क्या चीज क्या सेंस में क्या चीज उनको सुन के इंटरप्रेट करानी है, वो अडल्ट कर सकते हैं, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे। बच्चों में घबराहट होगी, जैसे आजकल बहुत बच्चों में एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन है, क्यों, क्योंकि बच्चे ऐसा मान रहे हैं ओ मेरा भविष्य अंधकार में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस अपॉर्चुनिटी से कुछ और निकलेगा। सो लिसनिंग, सो यू मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग एंड यू आर मेकिंग श्योर कि बच्चे भी उसको उसी तरीके से समझे जैसा है। उसके लिए आपको एम्पैथी डेवलप करने के लिए पड़ेगी, जो हम अभी आगे बात भी करेंगे। फिर आप क्लैरिटी डेवलप करिए, बच्चों को ऑप्शंस दीजिए, उनको फोर्स मत करिए, उनको रिकमेंड करिए, बेटा ये कर सकते हो और ये अच्छा नहीं लगता तो ये करो, ये नहीं अच्छा लगता तो ये करो। और अजाइल बनाइए, उनको बोलिए कि ठीक है आपने जो सीखा इसको इम्प्लीमेंट करो, मेरे ऊपर करो, ट्राई ऑन मी, चलो फैमिली ग्रुप है उसके ऊपर ट्राई करो, कुछ करो, क्या होगा, फेल हो जाओगे, फेलियर इज गुड, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। और ऑनलाइन फेल हो भी गए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, उसमें से लर्न करना और नेक्स्ट टाइम डोंट मेक दैट मिस्टेक। सो वुका, सो विजन, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी एंड एजिलिटी डेवलप करनी है। अब हम आते हैं कम्युनिकेशन स्किल स्पेसिफिक।